Yeah, this was the first homework, है ना? Could you get the answer of this? आपको आंसर मिला इसका? What is the answer? बोलिए. How much is the answer? तुम लोग सॉल्व नहीं करते क्वेश्चंस, क्यों नहीं करते? बोलो क्या प्रॉब्लम है? इजी क्वेश्चन था ये. दिस वाज डायरेक्ट क्वेश्चन. यस सर, नो? दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन. एक्सेस प्रेशर का रेशियो दिया हुआ है. एक्सेस प्रेशर का सिंबल सपोज हम P1 ले लेते हैं. P1 by P2. फर्स्ट ड्रॉप का 2s by R1 हो जाएगा और इसका 2s by R2 हो जाएगा. 2s तो कैंसिल हो जाएगा. R2 by R1. गेटिंग? तो एक्सेस प्रेशर का रेशियो 1:2. 1/2 is equal to R2 by R1. Therefore, R1 by R2 is 2:1. Cross multiply कर लो. Now we have got the ratio of radii. Very easy to get the ratio of surface area. Surface area का फार्मूला क्या होता है? A1 by A2. Surface area of the drop is how much? What is the formula? Can you tell me quickly? It is how much? 4 pi R1 square. This is 4 pi R2 square. So this is R1 by R2 है ना? Square. 4 pi will get cancelled. R1 by R2 is 2 by 1 square. There is 4:1. Got it? तो एक्सेस प्रेशर सेकेंड ड्रॉप में मोर है ना, और छोटी होगी है ना, उसका रेडियस जो कम है, तो ये आ रहा है. सरफेस एरिया भी कम है उसका. सरफेस एरिया के टर्म में 4:1. एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है ना. तो मोर प्रेशर मीन्स लेस एरिया, तो लेस एरिया आ रहा है. लेस रेडियस लेस एरिया आ रहा है, 1 आ रहा है. व्हाट अबाउट वॉल्यूम? वॉल्यूम V1 by V2 will be R1 by R2 क्यूब. वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? 4/3 pi R क्यूब. आर यू देयर और नॉट? That will be 8:1. Clear to everyone? Yes, sir. So these are the two answers of this question. It can be important question because it is not direct. First, we are using the excess pressure formula for the drop, which is 2s by r. वहां से हमें रेशियस रेडियाई का रेशियो मिल गया. Then we can have the ratio of what is called surface area or ratio of volume. ये surface area का रेशियो है, ये वॉल्यूम का रेशियो है इधर. ठीक है, और that's how it will be solved. ठीक है, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस. तो let's see further last topic of this chapter, then we'll start heat. ये हो गया था ये. हाँ, तो हमने क्या देखा? प्रेशर इनसाइड इज मोर, इनसाइड इज कॉनकेव. कॉनकेव साइड में प्रेशर मोर रहता है. सपोज हम ऐसे, ये पार्ट ऑफ द लिक्विड है, कोई लिक्विड की सरफेस ऐसे बेंड है. बेंड क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दैट कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस. सरफेस टेंशन इज द रोल. सरफेस टेंशन का रोल रहता है विच कम्स ड्यू टू कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस. तो इस तरह से दिस पॉइंट is outside, means this point is toward the convex side और अंदर पॉइंट B जो है कॉनकेव साइड में है. तो यहाँ पे कॉनकेव साइड में प्रेशर विल बी मोर, तो प्रेशर डिफरेंस विल बी 2s by r because this is nothing but a part of the drop. ऐसा कुछ ड्रॉप बन रही है ना, तो अंदर प्रेशर ज्यादा होगा. ये फ्लैट सरफेस है. फ्लैट सरफेस का रेडियस अगर हम आप बोलेंगे फ्लैट सरफेस के लिए भी अगर हम 2s by r लिखेंगे, तो फ्लैट सरफेस की r इंफिनिटिव होती है. फ्लैट सरफेस will have infinite radius of curvature. So this pressure difference will be 0.
तो pressure at A will be equal to pressure at B, provided A and B are very close to the interface. जो top surface है उसके दोनों point should be very close to the top surface. One is inside, one is outside. Now suppose ऐसा कुछ bend हो रहा है ना, इस तरह से we have the tube like this, है ना, and liquid surface is settling like this. Again, it will depend upon the cohesive and adhesive forces. The top meniscus is, इसको क्या बोलेंगे meniscus? It is concave upward. तो concave side is this side A वाली. Pressure at A will be more as compared to pressure at B. How much more? 2s by r. Because it is again one free surface है ना, एक free surface है इधर की. It is as good as equivalent to the inverted drop. Drop में एक ही surface होती है ना, in contact with the air. Getting or not? तो ये जो है, this point will help us in the next derivation, which is again very important derivation, you know. Next derivation is most important derivation based on this point we are going to do. A पर pressure more है, B पर less है, because A being on the concave side. And A and B will be very close to the top surface. यहाँ पे बिल्कुल close दिखाना पड़ेगा, A यहाँ पर, B यहाँ पर. So let's see what is the next topic coming up. Next topic is capillary rise. Capillary means very thin tube, very thin, hair-like tube. उसमें liquid water and most of the liquid will rise against the gravity because of the phenomena called surface tension. So let's see how does it work. तो ये पहले इसको समझते हैं. On a consequence of pressure difference across the curved surface, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, curved liquid air interface is well-known effect that water rises in the narrow tubes against the gravity, spite of the gravity. Sir, Yeah. Sir, sorry to disturb you in between, sir. Sir, can I ask which chapter is this? Fluid का chapter जो है fluid का, it is going on. Chapter number 1, just I will show you. Chapter number 10 है mechanical properties of fluid. Last topic is going on, ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. तो capillary rise, है ना? तो in narrow tube रहती, capillary means very narrow. The word capillary means hair in the Latin language. If tube were hair thin, then rise would be very large. बहुत पतली ट्यूब को ऐसे पानी में डाल दीजिए, ऐसा. तो what you feel, liquid is rising because उसका जो surface बनेगी, curved surface बनेगी, उससे pressure difference होता है. Pressure difference से it rises up to compensate for the pressure difference. So let's see how it works. तो ये तो आपको कैपिलरी का इंट्रोडक्शन हो गया. कैपिलरी आपने देखा भी है, कैपिलरी ट्यूब्स जो है नैरो ट्यूब्स ओपन एट बोथ द एंड्स, लैब में अगर आपने देखे होंगे. इनकी डे टू डे लाइफ में मैंने एग्जांपल दिया आपको कैपिलरी ट्यूब्स के. लिक्विड राइजेस इन द थिन गैप्स ऑफ द ट्री, है ना. उसके जो ट्रंक है, जो रूट से जो है ऊपर टॉप ऑफ द लीफ इट इज गोइंग, देयर आर थिन ट्यूब्स इनसाइड द ट्रंक ऑफ द ट्री कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब्स. उसमें वाटर राइज हो जाता है धीरे धीरे, है ना. एंड इवन कॉटन विक्स दिए जो है दिया है, या केरोसिन लैम्प इन रूरल एरियाज, वहां पर भी बोतल कांच की जो बोतल होती है उसमें से कॉटन विक्स डाल देंगे उसमें, और केरोसिन विल राइज अप टू द टॉप, और उसको एज ए लैम्प यूज करते हैं ना, जैसे दिए में, वैसे बोतल में केरोसिन लैम्प बना के यूज करते थे पहले, जब लाइट इशू होती, लाइट नहीं रहती थी. और nowadays we don't have such problems of load shedding and we have the other means to use it. Kerosene lamps, आप केरोसिन की लैंप देखी होंगी आपने पुराने उसमें. तो they are all working on the principle of capillary action, है ना. तो which is
rising up liquid is due to surface tension phenomena. Let us see how it is rises, why it is rises, है ना? तो suppose ये thin tube, it will be very thin tube होगा तो effect will be more. So let's see, if you submerge the liquid, देखो next derivation is derivation for capillary rise, है ना? तो this is the tube, thin tube. डायग्राम में थोड़ा ज्यादा वाइड दिखाया, but it should be thin. If you put it into the water, है ना, ऐसे वाटर में डालें तो जो सरफेस है, टॉप सरफेस, बिकॉज ऑफ द कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, वाटर एंड ग्लास में ऐसी सरफेस आती है. कैसी? ऐसी सरफेस आएगी, कॉनकेव. कॉन्टेक्ट एंगल पढ़ा था हम लोगों ने, ये कॉन्टेक्ट एंगल रहेगा ऐसा थीटा, ठीक है? तो ऐसा सरफेस आएगा, कॉनकेव अपवर्ड. इफ यू टेक द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, बी को थोड़ा सा हम नीचे लेते हैं, बी पॉइंट इज हियर, ठीक है? बोथ आर एट सेम लेवल, ए एंड बी आर एट सेम लेवल, तो प्रेशर शुड बी सेम. ए पर अगर ए पर 1 एटमॉस्फेयर है तो बी पर भी 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? सेम लिक्विड में सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है. बट अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कॉनकेव में प्रेशर यहाँ पर मोर रहेगा, कॉनकेव के ऊपर प्रेशर इज मोर एज कंपेयर टू बी. बट ए पॉइंट पर तो एटमॉस्फेयर है, तो ए नहीं लेंगे, इसको पॉइंट सी ले सकते हैं. थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि यहाँ पे एक पॉइंट सी लिया, प्रेशर एट सी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी एटमॉस्फेयर. बट बी पर हम व्हाट वी आर टेलिंग, बी पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बिकॉज बी इज एट सेम लेवल एट ए इज वेरी क्लोज टू द टॉप सरफेस. तो ए पर देखो, ए पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो बी पर भी एट ए, सी लेट मी राइट, at a 1 atmosphere pressure. At B, it should be 1 atmosphere, ठीक है? But at C 1 atmosphere है because it is open to the atmosphere. यहाँ पर C कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है? क्लियर? C is again open to the atmosphere, तो वहां पर 1 atmosphere. तो how it is possible B and C पर प्रेशर सेम कब होगा? जब फ्लैट सरफेस होती है ऐसी, where it is, यहाँ पर देखो फ्लैट सरफेस होगी, then only the points will have the same pressure. But it is curved, तो B पर प्रेशर कम है, B पर प्रेशर is less, whatever written should be 1 atmosphere. तो क्या होगा? There is the pressure difference because of this liquid rises till B पर at B pressure is 1 atmosphere और C यहाँ पर आ जाएगा above the curved surface. तो at B pressure is less than 1 atmosphere, therefore liquid rises to compensate for that because B is at same level, A पर है, A पर 1 atmosphere है, B पर भी 1 atmosphere होना चाहिए, therefore it will rise till pressure at B becomes 1 atmosphere. That is the logic here. देखो, let's write this point and move forward. प्रेशर कितना कम है B पर? ओके, ये पॉइंट पहले समझ लेते हैं. देखो, कंसीडर है वर्टिकली कैपिलरी ट्यूब, सर्कुलर वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस r. इसका जो ये रेडियस r है ना, सरफेस ऑफ वाटर इज कॉनकेव, ये वाली inside the tube, ठीक है? That means there is pressure difference between the two sides of the top surface which is given by 2s by r. अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? 2s by r, r being the radius of curvature of the liquid. ये जो है, अगर इसको पूरा कंप्लीट करें, इट सर्कल विल कम लाइक दिस, तो r will be the radius of curvature of the liquid, ठीक है? तो ये क्लियर, 2s by r will be the radius of curvature, जिसका कर्व बनना है ना, circular curve. Now pressure at B is less than atmospheric pressure. B पर, यहाँ पर पॉइंट C लिया हमने, B पर 1 एटमॉस्फेयर से कम है बिकॉज
because point above that point B 1 एटमॉस्फेयर है। सी पॉइंट हमने लिखा नहीं है, यहाँ पर कितना कम है 1 एटमॉस्फेयर। देखिए प्रेशर एट बी इज लेस देन 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे 1 कर दो, नहीं लेस देन एटमॉस्फेयर बाय हाउ मच, यहाँ पे लेस देन 1 एटमॉस्फेयर बाय 2s by r, कितना कम है 2s by r। बट प्रेशर एट बी शुड बी प्रेशर एट ए, pressure at B should be pressure at A because they are at same level, since both are at same level. Therefore liquid rises in the tube till this pressure difference vanishes. यहाँ से ऊपर जाएगा जब तक प्रेशर डिफरेंस वैनिश नहीं होगा, खत्म नहीं हो जाएगा। तो कितना राइज करेगा, H rho G should be equal to 2s by r. That is the crux of the point. ये जो पॉइंट है, कितना ऊपर जाएगा जितना प्रेशर डिफरेंस है, कितना प्रेशर डिफरेंस है 2s by r। तो कैपिलरी राइज प्रेशर जो लिक्विड कॉलम है उसका प्रेशर H rho G होता है और rho GH होता है ना। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम हमने डिराइव भी किया था rho GH। तो ये जो है therefore it rises। तो this is the point which I wanted to make। ठीक है, क्या समझ में आया अभी आपको? कॉनकेव साइड में प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर है, कॉन्वेक्स साइड में, ये कॉन्वेक्स साइड है जहाँ पे प्रेशर इज लेस देन 1 एटमॉस्फेयर, but it should be pressure at whatever the pressure is at A, it should be there। So therefore it will rise till, यहाँ पे देखो, it will rise till the pressure difference B पर प्रेशर कितना हो जाएगा, इतना जितना कम था 2s by r, that will come from the rho GH। तो यहाँ पर भी B पर भी प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर, बिकॉज A पर 1 एटमॉस्फेयर है। गॉट इट? तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। कॉनकेव की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड राइज होता है टिल दैट प्रेशर डिफरेंस वैनिशेस। गॉट इट? तो ये पॉइंट आ गया, बस अभी ये मेन पॉइंट है, इसमें थोड़ा चेंज करके फाइनल डेरिवेशन हो जाएगा। बोलिए। आर यू देयर? क्लियर और नॉट? बोलिए क्या पॉइंट बताया मैंने? कैन समबडी एक्सप्लेन व्हाई द लिक्विड राइजेस? बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस क्यों हो रहा है? कि कर्व सरफेस है, कितना है 2s by r। कहां से आएगा प्रेशर डिफरेंस, कैसे कंपनसेट होगा? लिक्विड विल स्टार्ट राइज टिल द पॉइंट B बिकम्स, पॉइंट B पर प्रेशर जो है कितना कम था, इतना 2s by r, दैट विल कम फ्रॉम द rho GH। तो now B and A will have the same pressure, A पर 1 atmosphere, B पर भी same। Got it? So this you can write in your own language। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। B side being on convex side will have the pressure less by 2s by r, therefore liquid rises till this pressure difference vanishes। ठीक है, आगे देखिए इसमें आगे क्या चेंजेस करने। ये जो आर है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऐसा ये कर्व, अभी इसको मैंने एम्पलीफाई किया, ये इसको हमने इधर बनाया, देखो तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे आएगा, ऐसे राउंड बनेगा। तो ये कैपिटल आर है, ठीक है। हमें तो ट्यूब की रेडियस स्मॉल आर दी है, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन लाना है। कैन यू सी? शैल आई शो यू बिगर डायग्राम नाउ? कैपिटल आर देखो यहाँ पर, दिस इज द कर्व सरफेस, इसको पूरा कंप्लीट कर दो, राउंड बनाओ, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है। बट वी नीड रिलेशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। ये एंगल क्या होता है? थीटा होता है। ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो टोटल एंगल 90 हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा आएगा, दिस एंगल विल बी थीटा। ठीक है, आर थोड़ा सा मैं सेटल करूं, आर को यहाँ पे लिखो, दिस इज आर, ठीक है। और ये इसको हटा देता हूँ, ये एक मिनट जस्ट, दिस आर इज नॉट देयर, ठीक है। नाउ रेडियस ऑफ द ट्यूब इज दिस, कैन यू सी? Now you see this diagram, cos theta will be, okay, it is just decreasing, cos theta will be small r upon capital R। capital R की वैल्यू कितनी आएगी? R upon cos theta, ये हमें पुट करना है।
radius of curvature in terms of the radius of the tube. So that's what we have to put. Now use the from the figure you can see cos theta is equal to r by r, small r by r. Therefore capital R is r upon cos theta. ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. तो रो जी एच आर एच रो जी इज इक्वल टू ये 2s तो एज इट इज है और ये r की वैल्यू ये पुट कर दी हमने यहाँ पर. cos थीटा ऊपर चला जाएगा एंड h के लिए सॉल्व किया. h के लिए सॉल्व किया. h इज इक्वल टू 2s अपॉन cos थीटा और ये सब टर्म नीचे आ जाएंगे रो जी. तो r रो जी. That is what is the derivation. It means capillary rise is inversely proportional to the radius. Thinner the radius, more will be the rise. पतली ट्यूब लेंगे तो काफी रेडियस आधा कर दो, हाइट विल बी डबल. रेडियस 1/10 कर दो, हाइट विल बी 10 times as compared to previous value. Got it? So that's what is the derivation. यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं आप. एक मिनट. Can you see? This thing you can just briefly. This you can be brief. इतना लिखने की जरूरत नहीं है इसमें. You can just be brief for this. Main is this. Clear? Now you can ask your doubts. कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, कैपिलरी राइज, थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, ऑफ कोर्स रेडियस, ऑफ कोर्स डेंसिटी, मोर डेंसिटी लेस राइज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आल्सो. मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6. तो 6 ऊपर आ जाएगा. 6 times more will be the capillary rise if you do the experiment being at moon. Getting or not? Are you there or not? Just confirm your availability. Are you there? Yes, sir. Okay. तो बोलिए, हो जाएगा ये डेरिवेशन? Yes, sir. It is important. Its numericals are also very important. Anybody has doubt here in this? Akansha, are you there? No response coming. Yes, sir. Anirudh, clear? Again, no response coming. क्या हो गया तुम लोगों को? Why don't you respond? Anusha, Yes, sir. any difficulty here? No, sir. Okay. तो देखो इसमें some more point I can tell you. If you have done this main derivation यहाँ पे ये वाला point है ना, यहाँ से यहाँ तक. प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम याद है? इतना देखो, इतना कॉलम है एच रो जी. प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम रो जी एच हमने डेरिवेशन भी किया था. एक्स्ट्रा कितना? इतना ही है ना ये एच हाइट. नाउ ग्राफ कैसा होगा एच एंड आर के बीच में, है ना? इफ यू इंक्रीज द रेडियस, पहले थिन ट्यूब लिया, फिर और थिक किया, फिर और थिक किया, तो हाउ दैट हाइट विल बी चेंजिंग. तो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ विल कम यहाँ पे. ओके, ये क्वेश्चन है देखो. ओके, ग्राफ मैंने यहाँ ड्रा किया. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द सीक्वेंस.
देखो सीक्वेंस में ये है, सीक्वेंस में देखो एक पॉइंट और लेट मी टेल यू। देखिए फॉर मर्करी एंड ग्लास theta is greater than 90 degree, therefore cos theta is negative, cos more than 90 is negative, therefore h will be negative, therefore liquid mercury will fall in the glass tube, minus means opposite direction में जाएगी, because that forces cohesive and adhesive forces जो है they will be acting in opposite way, so h is negative, therefore level of Hg will fall in glass tube. नेगेटिव आ रहा है ना, तो उसमें लेवल कम हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा, कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मर्करी एंड ग्लास। देखिए लेट्स सी व्हाट इज दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, mercury has an angle of contact 140 degree with the soda lime glass, and that narrow tube of radius 1 millimeter made of the glass is dipped in the trough containing mercury. By what amount does the mercury dip down in the tube relative to the liquid surface? Suppose ये आपका liquid surface ऐसा, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, लेट मी ड्रा द फुल डायग्राम। इनिशियली ऐसा था कुछ लिक्विड सरफेस, इन दिस मच इज द ड्रॉपिंग, डिपिंग डाउन, नीचे चला जाएगा लेवल उसका, इन केस ऑफ मर्करी एंड ग्लास। तो एच निकालना है आपको, तो सरफेस टेंशन इज गिवन, सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी, ओके यहाँ तक हो गया था। सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 0.465, तो ये 0.465 पुट कर देना, 2 एज इट इज, 2 तो रहता ही है, फार्मूले में भी डिराइव किया हमने, 2s, एक मिनट, लेट मी राइट द फार्मूला, 2s cos थीटा अपॉन r रो जी, ठीक है। तो r भी गिवन है, रो भी गिवन है, डेंसिटी दी है आपको यहाँ पर, g यू कैन टेक 9.8 और 10 ले सकते हैं। cos 140 सॉरी विल बी सम नेगेटिव वैल्यू, है ना, नेगेटिव वैल्यू टेबल में देखना पड़ेगा आपको, है ना। cos 145 will be minus cos, sorry 140 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 50, तो माइनस साइन 50 आ जाएगा, 50 टेबल में देखना पड़ेगा, 45 का तो 1/√2 होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 0.7 से 0.8 के आसपास आएगा शायद, है ना। तो दैट यू कैन यूज द लॉग टेबल, तो cos 140 विल बी क्लोज टू 0.75 समथिंग आ सकता है माइनस में। तो यू पुट ऑल द वैल्यूज एंड सॉल्व इट, h की वैल्यू माइनस समथिंग 5.34 मिलीमीटर आ जाएगी, तो माइनस और डिपिंग पूछा ना, तो देयरफॉर डिप इज 5.34 मिलीमीटर, माइनस हटा के लिख देंगे, माइनस मींस इट इज डिपिंग डाउन, गोइंग डाउन, तो माइनस में आंसर नहीं दिया आपको, प्लस में दिया हुआ है। हो जाएगा ये क्वेश्चन, कैन यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ आवर टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 10। Come on, respond, keep responding. Yes, sir. Okay, तो ये कंप्लीट कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़े से लंबे होंगे। वेरिएशन ऑफ h विद r, अभी हम डिस्कस, बिकॉज h एंड r आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बाकी तो कांस्टेंट में चले जाएंगे टर्म्स, इफ यू इंक्रीज द रेडियस हाइट विल ड्रॉप, ऐसा ग्राफ आएगा, लिक्विड राइज विल बी ड्रॉपिंग, इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला r रेसिप्रोकल फंक्शन, गॉट इट। इट विल नॉट इंटरसेक्ट, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी,
it will be parallel to the axes. They are not intersecting. Don't draw it like this. ऐसे नहीं, this is wrong. ऐसे जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगी? उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू माइनस mx प्लस c. तो y की जगह h आ जाएगा माइनस सम कांस्टेंट x की जगह r प्लस c. ऐसी इक्वेशन होती तब ऐसे स्ट्रेट लाइन intersecting on x and y axis. But since this is the relation like this is called rectangular hyperbolic. In this, they will not intersecting to the x and y axes. ठीक है, तो ये ग्राफ कैन बी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो फॉर योर एग्जाम. ठीक है, ऑलराइट. तो ये हो गया आपका एक पॉइंट. एंड एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है ये भी. Capillary tube is tilted at angle 60 degree with the vertical. If initial vertical height is 10 centimeter, find inclined height. तो देखो इसको ऐसा डायग्राम बना देते हैं थोड़ा सा. यहां तक आपका लिक्विड फिल है, आपने इसमें कैपिलरी ट्यूब डाल दी. ठीक है, ऐसे कैपिलरी ट्यूब डाली इसमें. एक मिनट थोड़ा सा. ऑलराइट, यहां तक लिक्विड राइज हो गया. कितना है? 10 सेंटीमीटर. फिर आपने इसको इंक्लाइन कर दिया 60 डिग्री. तो क्या होता है? वर्टिकल हाइट रिमेन सेम. यहां तक जाएगा अभी लिक्विड. तो ये एच डैश हो गई. एंगल कितना? 60 डिग्री. तो cos 60 एंगल फ्रॉम वर्टिकल दिया है ना, देखो वर्टिकल से लेना है, हॉरिजॉन्टल से नहीं लेना है. cos 60 इज, इसको h ले लो, दिस इज h, इनिशियल हाइट इज h अपॉन h डैश. तो cos 60 इज 1/2, h इज 10, h डैश निकलना है इंक्लाइन हाइट, that will be 2 into 10, 20 centimeter. So that's how it will be done. Got it? डबल हो गई because 60 डिग्री is 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से. बोलिए इसमें डाउट है किसी को? ऐसा हमने पढ़ा था. बिकॉज प्रेशर डिफरेंस जो होता है ना, ये वर्टिकल हाइट पर, वर्टिकल हाइट यहाँ से वर्टिकल हाइट कितनी है, that compensate for the pressure difference. Pressure difference always depend upon the vertical height. इंक्लाइन हाइट पे डिपेंड नहीं करता. आप इंक्लाइन कर देंगे, सपोज इतनी हाइट थी पहले इंक्लाइन में, ये it will start rising up till the vertical height becomes 10 again यहाँ से, because pressure difference depend upon the vertical height. Pressure difference की वजह से है ना कैपिलरी राइज. Got it? So once there was question in some paper. Okay, let me see, पहले इसको कंप्लीट कर लेते क्या है. Yeah, done. एक्स्ट्रा पॉइंट में देखो, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा बता दूंगा आपको इसमें, या पहले ये एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट कर लेते हैं ये. ओके, ये दो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के. देन आई विल टेल यू सम मोर एक्स्ट्रा पॉइंट अबाउट दिस. देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व एग्जांपल. आर यू देयर? तुम लोग ऑनलाइन पर? Yes, sir. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. ये यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने? द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर इज डिप्ड 8 centimeter below the surface of the water in a beaker. What is the pressure required in the tube in order to blow the hemispherical bubble at the end of the water? The surface tension of water is given this much. 1 atmospheric pressure is value is given this much. Density of water is given. G is given. Also calculate the excess pressure. तो यहाँ पे देखो ये ट्यूब है ऐसे पानी के अंदर है उसको. तो यहाँ पे हेमी स्पेरिकल बबल ऐसा हाफ स्पेरिकल बबल है, हेमी स्पेरिकल बबल. यू आर टू ब्लो. तो अभी सरफेस टेंशन का रोल भी लेना पड़ेगा हमें इसमें.
पहले हम लोग सरफेस टेंशन को नेग्लेक्ट कर रहे थे, एक्सेस ये अपना जो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन नहीं, ये सरफेस टेंशन का अभी जो हमने जो पीछे पढ़ा था लिक्विड ड्रॉप का, लिक्विड इसका कैपिलरी ट्यूब से कुछ वो नहीं है, ये लिक्विड ड्रॉप का क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। देखो यहाँ पर प्रेशर क्या है, प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड, प्रेशर डिफरेंस, हेमीस्फीयर आ गया, ये हेमीस्फीयर इज पार्ट ऑफ द स्फीयर, एक साइड में लिक्विड है एक साइड में एयर है, तो प्रेशर डिफरेंस इज 2s/r। प्रेशर इनसाइड, आउटसाइड प्रेशर को इधर ले आएंगे तो, बट आउटसाइड प्रेशर कितना है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस HROG, तो आउटसाइड प्रेशर इज एटमॉस्फेयर प्लस HROG, ठीक है। तो प्रेशर इनसाइड ये सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो सॉल्व करेंगे तो इट कम्स टू बी 1.02 into 10⁵. It is almost similar to the question air bubble in the liquid. Question क्या था, air bubble in the liquid, similar to that, it is absolutely similar to that. Only thing question देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, but it is a question of air bubble in the liquid, similar to that. And pressure difference पूछेंगे, excess pressure भी निकालना है, excess pressure is nothing but a 2s/r, 2s/r 146 आ रहा है वैल्यू पुट करके, एक्सेस प्रेशर में 2s/r 146, ठीक है। तो दिस इज नॉट द डिफरेंट क्वेश्चन, दिस इज द एक्सेस प्रेशर क्वेश्चन फॉर द बबल इन द लिक्विड which is similar, which is equivalent to the liquid drop. तो ये आप just in a solid example you can see डेंसिटी का काम आया क्या इसमें, डेंसिटी क्यों नहीं काम आया, अरे यहाँ पे काम आ रही है रो जी, ठीक, दिस यू कैन डू इट नो प्रॉब्लम। तो ये एक सॉल्व एग्जांपल, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इन्होंने क्या किया है, ये एक वाइड ट्यूब है एक नैरो ट्यूब है, तो जनरली तो प्रेशर दोनों साइड में लेवल सेम रहता है, अगर इफ एरिया इफ बोथ द आर्म्स आर ऑफ इक्वल रेडियस तब तो लेवल सेम रहेगा, बट अनइक्वल रेडियस होने से यहाँ पर देखिए ये थिन है और ये थिक ट्यूब है, तो थिन में वी नो लिक्विड जो है it will settle to the larger height. Thin में क्या होगा, it is observed that because of surface tension phenomena it will have some extra height, और इस ये थोड़ी कम हाइट होगी इसकी, इसका रेडियस मोर है तो कम हाइट होगी, तो ये पूछा उन्होंने डिफरेंस ऑफ लेवल इन द यू ट्यूब ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट विल बी h1 - h2। यहाँ पर हम लोग कैपिलरी राइज का फार्मूला यूज कर सकते हैं इसमें, तो h1 इज 2s/r rho g, cos थीटा विल बी 1, यहाँ पे इन्होंने दिया होगा वाटर का, वाटर के लिए cos थीटा फॉर प्योर ग्लास वाटर, यहाँ पे लिखो फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास थीटा विल बी 0, therefore cos 0 विल बी 1। तो यहाँ पे cos का टर्म हमने छोड़ दिया, cos 0 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, नीचे r rho g, तो rho g कॉमन हो गया, r1 - r2, यहाँ पे cos थीटा 1 लिखा मैंने, ठीक है। तो अभी वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आपको लेवल डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट द प्रेशर डिफरेंस, लेवल डिफरेंस इन द बोथ द आर्म्स व्हिच आर ऑफ अनइक्वल रेडियाई, ठीक है। तो ये आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। कैन यू कंप्लीट दिस? और अगर दोनों को रेडियस सेम कर दिया r1 = r2, ये तो 0 हो जाएगा, फिर both are of same radius, pressure difference, level difference will not come, ठीक है। तो this is the question number 30, you can just mark it and do it, complete it. Are you there? No problem till now? बोलिए। No, sir.
तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट अब मैं बताने वाला था आप लोग को, तो देखते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट व्हाट एल्स आई कैन टेल यू, या फिर पहले ये क्वेश्चन कर लें। ये वाला देखो, इट इज ऑफ प्रीवियस कंटिन्यूटी इक्वेशन का है ये, बर्नौलीज इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन का। लेट्स सी दिस। वाटर फ्लोज स्मूथली थ्रू द पाइप शोन इन द फिगर। Descending in the process, descending in the process, यहाँ पे नीचे जा रहा है पाइप, ऐसे वर्टिकल है। Rank the 4 numbered sections of the pipe. ये नंबर 1, 2, 3, 4. The volume flow rate through them. Rate of flow Q, हमने सिंबल Q लिया था। Rate of flow कहाँ पर? Greatest first. Rate of flow में लिखना है greatest first। बोलिए, रेट ऑफ फ्लो से हमें बोलो, रेट ऑफ फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख सकते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन से रेट ऑफ फ्लो इज Q इज इक्वल टू A इंटू V होता है ना, एंड A इंटू V अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन इट इज कांस्टेंट। कंटिन्यूटी इक्वेशन मैंने पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 विच इज कांस्टेंट। Q शुड बी कांस्टेंट। जितना सपोज यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो जो है 10 लीटर पर सेकेंड और पर मिनट पर आवर, यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा। ऑल टाइम ए में ऑल टाइम फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। बी पर बोलिए, बी का क्या रहेगा? द फ्लो स्पीड बी थ्रू देम। बोलो, फ्लो स्पीड जो है हमें लिखनी है, वो भी कंटिन्यूटी इक्वेशन से लिख सकते हैं क्या हम? यस, वी कैन राइट फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जहां ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जहां पे एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी। एरिया क्रॉस सेक्शन सबसे कम कहां पर है? यहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा 1 पर होगी। फिर 2 और 3 पर सेम एरिया है, तो 2 और 3 टाई, 2 और 3 आर इक्वल, टाइम इज इक्वल। आर यू देयर? Yes, sir. कंटिन्यूटी Yes, इक्वेशन से। और 4, ओके, 4 का एरिया सबसे ज्यादा है, तो वेलोसिटी सबसे कम हो गया। हमें वेलोसिटी लिखनी थी ना, फ्लो स्पीड लिखनी थी, यस। तो 4 इज द लीस्ट वन। कंटिन्यूटी इक्वेशन में हाइट एंड डेप्थ का फर्क नहीं पड़ता है। तुम यू में थिंक कि सर ये तो नीचे है ना। इवन वर्टिकल ट्यूब है ऐसे, लेट इट बी हॉरिजॉन्टल ट्यूब और वर्टिकल ट्यूब, है ना। जहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन कम है वहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन मोर है वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। इनवर्स है, अपोजिट चलेगा। लेस एरिया क्रॉस सेक्शन मोर वेलोसिटी। ट्यूब नीड नॉट टू बी हॉरिजॉन्टल, इट कैन बी इंक्लाइंड, वर्टिकल, और दिस टाइप ऑफ द ट्यूब में बी देयर। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज सी वाटर प्रेशर। प्रेशर में हमने हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए तो देखा था, हॉरिजॉन्टल ट्यूब में क्या था, यहाँ ऐसे दो बर्नौलीज इक्वेशन से E प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए नया पॉइंट हो गया। हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए तो हमने देखा था, है ना। हॉरिजॉन्टल ट्यूब है नॉन यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो v2 इज ग्रेटर देन v1। तो जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर कम हो जाता है, तो p2 लेस देन p1।
तो अभी एज पर दिस लॉजिक, तो एज पर दिस लॉजिक वेलोसिटी कहाँ पर ज्यादा है, उसका प्रेशर कम है, तो ग्रेटेस्ट फर्स्ट लिखना है। तो लीस्ट वेलोसिटी कहाँ पर है, 4 पर है। तो लीस्ट वेलोसिटी 4 पर है, प्रेशर 4 पर सबसे ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग इट नॉट? 4 एंड 3 एंड 2 पर तो वेलोसिटी सेम है, प्रेशर सेम होना चाहिए, इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर रहे। और 1 पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है ना, तो प्रेशर सबसे कम होगा, वहां पे प्रेशर विल बी लेस। देयर आर 3 एजेंसीज प्रेशर, ऐसे बर्नौलीज इक्वेशन में क्या है, प्लस पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। यहाँ पे रो जी एच का भी रोल है। तो इसमें तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो 3 एंड 2 पे वेलोसिटी तो सेम है, बट 3 नीचे है ना। यहाँ पे इतने लिक्विड का प्रेशर जो एच है वो भी वर्क करेगा। तो 3 जो है नीचे है, तो उस पर प्रेशर ज्यादा रहेगा, इवन इफ वेलोसिटी आर सेम। यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी सेम है, बट 3 बीइंग बिलो द 2, तो 3 पर जो एक्स्ट्रा जो हाइट है ये, उसका प्रेशर भी रहेगा। 4 3 2 1। तो इसको एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे कैन यू सी द ऑल द आंसर्स। यहाँ पे वाइडर एंड लोअर मीन्स मोर प्रेशर, तो ये वाइडर है ना, बट ये दोनों जो है इक्वली वाइड है, बट ये लोअर है। मैं लिख दूं या ऊपर से आंसर लिख सकते हैं अभी आप, ये वाला लास्ट वाले में कंफ्यूजन ये आपका, दिस इज द क्वेश्चन लास्ट पार्ट, ये वाला पॉइंट, ये जनरली ये मिस्टेक हो सकती है इसमें। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, वाइडर का तो प्रेशर मोर है, नो प्रॉब्लम, और ये नैरो है, नैरो का प्रेशर कम हो गया, बट ये दोनों इक्वली वाइड है, बट लोअर देखना है। वाइडर एंड लोअर मीन्स मोर प्रेशर, दैट इज द क्लू फॉर मी। दिस इज स्लाइटली हायर ऑर्डर क्वेश्चन, ये दिस कैन बी यूजफुल फॉर जेई एंड नीट। ये थर्ड पार्ट है ना, ये जेई एंड नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, those who are going for competitive examination. This can be very important question. Generally, it is difficult to reply this part. Got it? बोलिए। Other parts were easy, A and B. C में थोड़ा सा confusion था। बर्नौलीज इक्वेशन के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है, अगर इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वेलोसिटी तो सेम रहेंगी, बट अगर वो पार्ट नीचे है, तो एक्स्ट्रा जो हाइट है एचरोजी का, उसका इफेक्ट रहेगा। यहाँ पे प्रेशर विल बी मोर, पार्टिकल्स हियर लिक्विड के पार्टिकल यहाँ पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कम प्रेशर अप्लाई करेंगे व्हेन वी कंपेयर दिस टू, इवन इफ वेलोसिटीज आर सेम। क्लियर? क्लियर और नॉट? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, चलो ये हो गया कि नहीं, इसको देख लो, आंसर्स मैंने यहाँ भी लिखे, एंड यू कैन सी द आंसर्स हियर आल्सो। Anything you want to clarify here, Insia? Yes, any difficulty? One more question I was asking, ये हो गया आपका noted? Yes. Done? यहाँ पे from है, देखो from, and this is also from continuity equation.
ए एंड बी का कंटिन्यूटी इक्वेशन है और सी के लिए बर्नौलीज इक्वेशन का भी रोल है। ओके, नाउ यू टेल मी, अगर सपोज ये लिक्विड है, देखो ये ट्यूब यहाँ तक है, देखिए कैन यू सी इट इज अप टू हियर, बट इफ यू टेक दिस मच ट्यूब, यहाँ तक ही ट्यूब ले, इनसफिशिएंट हाइट, अगर ट्यूब हमने ऐसे दूसरी ट्यूब डाल दी है यहाँ पर सेम रेडियस की इतनी, तो क्या होगा फिर? इतनी ट्यूब डाली तो विल द वाटर जस्ट फ्लो आउट लाइक दिस और इट विल जस्ट डिप इट, ऐसे डिप करेगा, क्या करेगा? और वाटर विल नॉट कम आउट एट ऑल। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, इनसफिशिएंट हाइट ऑफ द ट्यूब में, है ना, या इसमें यहाँ तक क्लाइम कर रहे हैं, सेम ट्यूब you cut it down, and इतनी छोटी ट्यूब ले ली हमने सेम रेडियस की, it is supposed to go up to here but tube is up to here, so what will happen? Are you getting my question? So will the water flow out like this, like fountain, or it will just drip, or water will not drip at all, water will not come out at all from the insufficient tube? तो आंसर है it will not come out, only thing radius of curvature will change। यहाँ पे जब आएगा ना, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा बढ़ जाएगा ऐसा, इसमें छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, इसमें बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखो एच आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बाकी टर्म्स कॉन्स्टेंट है, एस भी कॉन्स्टेंट है, देखिए टू भी कॉन्स्टेंट है, रो भी कॉन्स्टेंट है, जी भी कॉन्स्टेंट है, एच इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। when the h goes, when h comes down, radius goes up, radius of curvature goes up। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में ऐसे आते हैं कि अगर आपने इनसफिशिएंट ट्यूब ले ली तो क्या होगा? वाटर विल नॉट कम आउट, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल इंक्रीज। यहाँ पे लिख दूं मैं, फॉर इनसफिशिएंट हाइट ऑफ द ट्यूब क्या होगा, समवेयर यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर इनसफिशिएंट हाइट ऑफ द ट्यूब, नोट पे लिख देता हूँ, insufficient height of the capillary tube water or liquid will not come out, water or liquid will not come out, but radius of curvature will increase, but radius of curvature ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। कैन यू रिमेम्बर दिस? Yes, sir. ओके, तो ये नोट कर सकते हैं, जस्ट यू कैन राइट दिस पॉइंट, समटाइम्स यू मे रिक्वायर इट। और एक पॉइंट और बता सकता हूँ मैं, जस्ट ये नोट कर लीजिए, तो एक और बताता हूँ, देन वी कैन वाइंड इट। न्यू चैप्टर विल स्टार्ट टुमारो, कल हम लोग हीट का चैप्टर नंबर 11, उसमें वी आर गोइंग टू सी थर्मल एक्सपेंशंस, टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक है उसमें, we'll do it tomorrow। डन, दिस इज नोटेड। एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे दिया आपको, Yes, Yes, sir, noted. ओके। एक लास्ट पॉइंट मैं पूछता हूँ, देखो सपोज यहाँ पे अपने पास इक्वेशन ये है, देखिए यहाँ पर जी यहाँ पर है, तो एक्चुअली अगर इफ यू कीप दिस इन द लिफ्ट, है ना, एक्सपेरिमेंट हम लिफ्ट में कर रहे हैं विच इज एक्सेलरेटिंग डाउन, तो एक्सेलरेटिंग डाउन में क्या लेंगे, जी माइनस ए लिखते हैं। इफ सिस्टम कम्स डाउन लिफ्ट में, तो जी माइनस ए, इफेक्टिव जी की वैल्यू, जी इफेक्टिव कैसा रहता है, जी माइनस ए, है ना। जब लिफ्ट गोज अप विद द एक्सेलरेशन है तो जी प्लस ए हो जाता है। तो अगर ये डाउन है, इट इज कमिंग डाउन, तो जी माइनस ए लिखना पड़ेगा यहाँ पर। बट इट इज फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में क्या होगा, ए विल बी जी, तो जी ये जीरो हो जाएगा, तो एच इज कमिंग टू बी इन्फिनिटिव, है ना। आर यू गेटिंग द
अगर हम सिस्टम को नीचे एक्सलेट करें 2s cos थीटा तो r रो g माइनस a होता है। तो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में a विल बी इक्वल टू g, तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, h विल बी इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या, लिक्विड इनफाइनाइट तक चला जाएगा? नो, लिक्विड विल कम टू द टॉप एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी ऑलमोस्ट फ्लैट, ऐसे हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी ये फ्लैट हो गई तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकम्स इनफाइनाइट। प्रेशर डिफरेंस विल बी नॉट बी देयर, इट विल नॉट कम आउट। देन फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में लिक्विड विल गो अप टू द टॉप, इट विल नॉट कम आउट। इन एनी केस इट इज नॉट गोइंग टू कम आउट। हमने इनसफिशिएंट ट्यूब लिया तभी भी टॉप तक जाएगा और उसके बाद उसकी सरफेस फ्लैट होनी शुरू हो जाएगी। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में भी इट विल रीच टू द अप टू द टॉप but surface will flatten but it will not come out. So in no case it is coming out, है ना? Clear or not? रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्लैट हो जाती है, प्रेशर डिफरेंस खत्म हो जाता है, तो then it will no more further climb, है ना? In other words it will not come out. Getting or not? Can you remember these points? अगर freely falling lift में है या insufficient tube है, capillary tube, so liquid will not come out, its top surface will flatten, pressure difference will go, it will not come out. ठीक है, तो आज का हमने मेन टॉपिक क्या सीखा, कैपिलरी राइज का। इस पे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना? आपको कुछ वैल्यूज h दे देंगे, रेशियो पूछ लेंगे ना, रेशियो ऑफ रेडिया इज 1:2। एक क्वेश्चन और पूछूं फिर वाइंड अप कर दूं? बोलिए, जस्ट लेट अस सी व्हाट वी हैव लर्न टुडे। हमने कैपिलरी राइज का डेरिवेशन किया है, which is very important derivation. Numericals can be there, derivation can be there. फिर what is the formula coming? 2s cos theta upon r rho g. S is what, surface tension, theta is the angle of contact, r is the radius of the tube, rho is the density of liquid, g is the acceleration due to gravity. कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5। कैपिलरी राइज डिपेंड्स अपॉन द 5 टर्म्स अपार्ट फ्रॉम 2 छोड़ के, ठीक है। नैरो द ट्यूब, height will be more significant. डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं लिक्विड राइजिंग इन द ट्री, है ना, फ्रॉम द रूट टू द टॉप ऑफ द ट्री अगेंस्ट द ग्रेविटी, एंड आल्सो इट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉटन विक्स, है ना, केरोसिन लैंप एंड नॉर्मल लैंप, आल्सो दिए वगैरह में भी, है ना, नॉर्मल लैंप, दिवाली लैंप्स, है ना। तो इट इज राइजिंग in the capillary tubes, and thin tube will be called capillary tube, narrow tubes will be called capillary tube. And then question इसमें, तो मेरा क्वेश्चन एक ये था फाइनली, यहाँ पे देखो, if ratio of radii of two tubes, capillary tubes is 1:2, what will be ratio of capillary rise, ratio of capillary rise, other parameter remains same, other parameters are same. क्या आंसर होगा बोलो? H1 by H2, सारे टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो R इनवर्स रिलेशन है, R2 by R1 आ जाएगा, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, तो इट विल बी 2:1, है ना। जिसका रेडियस कम है देखो उसमें राइज ज्यादा होगा, 2, इनवर्स रिलेशन है, डोंट राइट 1:2, इट विल बी 2:1, है ना। गॉट इट? Yes. मास के टर्म में, ओके, यू कैन नोट डाउन, और इफ यू अंडरस्टूड देन यू कैन स्किप नोटिंग। इनवर्स रेशियो, रेडियस जो दिया है 1:2 उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। यस सर, नो, बिकॉज हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर।
मास के टर्म में क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि मास जो है, मास क्लाइंबिंग कैसे निकालेंगे? अगर मास का टर्म में पूछा, बोला जाए रेडियस डबल कर दी तो मास कितना क्लाइंब करेगा, ऐसा अगर पूछा जाए, बोलो कैन यू थिंक ऑन दैट लेवल? देन विल वाइंड अप, वी आर नॉट राइटिंग। अगर सपोज ये रेडियस डबल हो जाए, ट्वाइस हो जाए, तो मास क्लाइंबिंग जो है कितने टाइम्स हो जाएगा? विल इट बी ट्वाइस और इट विल बी 4 टाइम्स और इट विल रिमेन सेम और इट विल बी हाफ? तो ये इसका मास कैसे निकालेंगे? इसलिए निकल लेंगे इसको, है ना? तो मास निकालने के लिए क्या होता है? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम में क्या होगा? वॉल्यूम में क्या आता है बोलो? 4/3 पाई आर क्यू आएगा, आर क्यू आएगा ना, इंटू, नहीं सॉरी, वॉल्यूम में क्या आएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एच। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर आएगा इंटू एच। ठीक है कि नहीं? तो अभी क्या हो रहा है? अगर रेडियस हमने डबल कर दी, डेंसिटी वगैरह तो सेम रहने वाली है, वॉल्यूम पे ही फोकस करें। रेडियस डबल कर दी हमने, है ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ आर डैश, है ना, 4 आ जाएगा। लेकिन एच आधा हो जाता है, 1/2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो मास भी डबल हो जाएगा ना। अगर तुमने रेडियस डबल कर दी तो मास भी डबल हो जाएगा। यू कैन थिंक ऑन दैट लाइन। तो दैट पॉइंट आई एम नॉट डिस्कसिंग, यू कैन थिंक एंड टुमारो वी कैन डिस्कस। चलो छोड़ दो अभी उसको। Shall I end it now? Yes, sir. Okay, chale. Thank you. We'll start new chapter tomorrow. This is over. Thank you. Thank you, sir. Okay.